قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو احتیاطی طور پر نظر بند رکھا گیا ہے تاکہ وادی میں حالات نہ بگڑے۔ حالات بہتر ہوتے ہی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ پاکستان جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کچھ لا علم لوگ ایک دو واقعات کو عوامی رائے تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں حالات بگاڑنا چاہتا ہے، وہ عالمی برادری کو کشمیر میں شورش دکھانا چاہتا ہے۔ قومی سلامتی مشیر نے کہا کہ ہم کشمیر میں تمام پابندیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان پر منحصر ہے کہ اس کا طرز عمل کیسا رہے گا۔ ڈوبھال نے مزید کہا کہ پاکستان اکسانے کی کوشش بند کر دے تو ہم پابندیاں ہٹا لیں گے۔ قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کی اکثریت دفعہ 370 کی منسوخی کی حمایت میں ہے اور میں اس تعلق سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ ڈوبھال نے کہا کہ کشمیری عوام اپنا بہتر مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ چند شرپسند دفعہ 370 کے ہٹائے جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے مظالم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور 199 پولیس اسٹیشنوں میں سے صرف 10 پولیس اسٹیشنوں میں بندشیں عائد ہیں۔ ڈوبھال نے کہا کہ لینڈ لائن رابطہ 100% بحال ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اجیت ڈوبھال نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ عظما کو دہلی کے ایمز منتقل کیا جائے۔ اور سری نگر شہر میں متواتر 34ویں دن بھی دفعہ 144 نافذ ہے، تاہم آج شہر کے بیشتر علاقوں سے بندشیں ہٹائی گئیں۔ دکانیں اور تجارتی مراکز بند رہنے سے سری نگر کی اہم مارکیٹوں میں سناٹا رہا۔ حالانکہ ہائی اسکول تک اسکول کھلے ہیں، لیکن طلبہ کی حاضری نہ کے برابر ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال کشیدہ مگر کنٹرول میں ہے۔ ابھی تک کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آمد و رفت برقرار ہے، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد آج سب ضلع ترال میں 34ویں روز بھی تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر رہیں۔ وہیں بس اسٹینڈ ترال میں فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔ قصبے میں لینڈ لائن خدمات بھی بحال کر دی گئی ہے۔ کافی دقت رہی ہے پچھلے کچھ ٹائم سے، بٹ کوشش یہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا متبادل نظام رکھیں۔ تو فی الحال ہم نے پہلے یہ شروع کیا تھا کہ یہاں پہ ہیلپ لائن رکھیں پبلک کے لیے۔ تو پبلک کی آپ نے دیکھا ہوگا کافی ان کی لائن لگی ہوئی ہے، اینڈ ہیلپ لائن ہم نے یہاں پہ فری رکھا ہے، تو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے جو بھی ان کے اپنے رشتہ دار وغیرہ ہیں دوست ہیں، باہر ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی ہمیں ایک فیور اور ہوا ہے کہ ہماری لینڈ لائن بھی ہمیں اب ریسٹور ہوئی ہے۔ تو لینڈ لائن ہمارے آفس کی نہیں بلکہ سارے انٹائر ترال کی وہ ریسٹور ہوئی ہے، لہٰذا اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اینڈ امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں موبائل سروس بھی انشاءاللہ وہ بھی ریسٹور ہو جائے گی۔ مسلسل بندش کی وجہ سے آج ضلع کلگام کے تحصیل صدر مقامات اور سب ڈویژن نور آباد میں اگرچہ تمام کاروباری ادارے بند رہے، تاہم نجی ٹرانسپورٹ کی آواجاہی دیکھنے کو ملی۔ اس دوران سرکاری دفاتر میں بھی ملازمین کی حاضری قدرے بڑھ رہی ہے۔ کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند ہونے کے باعث لوگوں اور طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لوگوں نے موبائل کالنگ اور انٹرنیٹ بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ قصبہ پلوامہ میں اگرچہ پوری طرح بندشیں ہٹا لی گئی ہیں، تاہم قصبے میں گزشتہ 34 روز سے تمام کاروباری ادارے بند ہیں۔ قصبہ پلوامہ میں نجی گاڑیاں سڑکوں پر نظر آئیں، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ پورے ضلع میں سڑکوں سے غائب رہا۔ قصبہ پلوامہ کے کچھ حساس مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ قصبہ پلوامہ سمیت پورے ضلع میں اگرچہ حالات پرامن ہیں، تاہم بند کی وجہ سے معمولات زندگی مسلسل متاثر ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے قصبہ شوپیاں سمیت پورے ضلع میں گزشتہ 34 روز سے مسلسل کاروباری ادارے بند ہیں۔ قصبہ شوپیاں میں حکام نے اگرچہ مکمل طور پر بندشیں ہٹا لی ہیں، تاہم اس کے باوجود بھی قصبہ شوپیاں سمیت پورے ضلع میں کاروباری ادارے بند رہنے سے عام زندگی کافی متاثر ہے۔ اس دوران جہاں قصبہ شوپیاں میں نجی گاڑیوں کی آمد رفت دیکھی گئی، وہیں پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب رہا۔ ضلع شوپیاں میں سیب اور دیگر میوہ جات کا کاروبار بھی مسلسل متاثر ہے۔ تاریخ مغل روڈ پر بھی گزشتہ ایک ماہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت معطل ہے۔
کپواڑہ ضلع میں آج بندشیں ہٹائی گئی جس کے بعد سے سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آواجاہی دیکھی گئی، جبکہ دکانیں اور کاروباری ادارے آج بھی بند رہے۔ تاہم مسلسل انٹرنیٹ سروس اور موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم کسی بھی امکانی گڑبڑی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فورسز کو داخلی اور خارجی راستوں پر احتیاط کے طور پر تعینات رکھا گیا ہے۔ پورے دن حالات مجموعی طور پر قابو میں رہے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ڈانگرپورہ سوپور میں زخمی ہوئے افراد کو مزید علاج کے لیے بونس اینڈ جوائنٹ اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں کمسن لڑکی عظما جان بھی شامل ہیں، جسے ایمز دہلی ریفر کیا گیا۔ قومی سلامتی مشیر اجے ڈوبھال کی ہدایت پر لڑکی کو ایمز ریفر کیا گیا۔ دیگر مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے بتایا کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان کا کہنا ہے کہ طلباء کا نصاب ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر اضافی کلاسز منعقد کی جائیں گی اور بورڈ امتحان کی تاریخ میں توسیع کی جائے گی۔ ایک میٹنگ کے موقع پر نیوز 18 اردو کے ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد سے خاص بات چیت کرتے ہوئے گورنر کے مشیر نے سرپرستوں اور والدین سے اپنے بچوں کو اسکول روانہ کرنے کی اپیل کی۔ ہمارے بچے اسکول نہیں آ پا رہے ہیں، اسکول نہیں آتے ہیں، تو کیا ہوگا ایگزامز کا اور سلیبس کا؟ سلیبس ہمارا 50% کے قریب کورڈ ہے اینڈ وی آر ہوپفل دیٹ سون دا اسٹوڈنٹس وڈ اسٹارٹ coming to their classrooms. Their classrooms are waiting for them. The teachers are also waiting in the schools for them. It's only up to the parents how long they would like their children, their wards, to remain away from their books, their studies. They should have the faith in the system. The security scenario is not as that bad that the child would be put to any kind of danger. Let them come to the schools, and we were discussing that this month which has gone by, we would ensure that ایگزامز کو پیچھے yes نہیں پیچھے ہم پیچھے بھی اگر لینا پڑا تو ایگزامز آر ناٹ سم تھنگ انگریوڈ آن اے اسٹون سلیٹ۔ اگر 10-15 دن 15 دن مہینہ آگے پیچھے کرنا پڑا ہم کر لیں گے ایگزامس، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے بچوں کی پروگرس میں، بچوں کی اسٹڈیز سفر نہ ہوں۔ اور ابھی آپ کے ذریعے میں یہ میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولس میں بھجوائیں، خاص طور پر جو اسکولس کھل گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی کلاس رومز، ان کے ڈیسک، ان کے گراؤنڈ، ان کے پلے گراؤنڈ اور ان کے ٹیچرز ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سر آپ نے اکتوبر کی ہمارا ایگزامس جو ہے سیشن اکتوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم بات ابھی 10th اور 12th کی کریں گے کیونکہ 10th اور 12th کا ہمارا بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، اکتوبر اب شروع ہونے والا ایگزام۔ ایسے میں ہمارے پاس کچھ ہی دن ہے۔ اب سلیبس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% کمپلیٹ ہے، مے بی 55 ان سم اسکولس، تو کافی سارا سلیبس رہ جاتا ہے۔ ہمارے ٹیچرس، آئی ہیو فل فیتھ ان مائی ٹیچرس that they would ensure that in government schools the syllabus, maximum syllabus is covered in whenever the students would start coming to the classes, and even if it means taking extra classes, burning midnight oil by the teachers, I'm sure my teachers would definitely come up to the expectations of the society here. یا ایگزامز کو پیچھے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، گورنر کے مشیر سے تفصیلی بات چیت آپ اس بلیٹن کے اگلے حصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب اس وقت ہمارے نمائندے سنم تصدق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، موجودہ حالات کی اپڈیٹ بھی لیں گے اور جس طرح سے خان نے طلباء کو اور دیگر چیزوں کے لیے یقین دلایا ہے کہ بہت کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ سوپور میں تصدق، سوپور میں شہریوں پر ملیٹنٹوں کا جو حملہ ہوا ہے جس میں کمسن بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، حالیہ دنوں میں بھی اس نوعیت کے واقعات ہو چکے ہیں۔ تصدق، تو کیا ان واقعات کو ملیٹنٹ سرگرمیوں میں اضافے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جیلانی، اگر ہم بات کریں جو آج یہاں پہ سوپور میں حادثہ پیش آیا، یہ یا اس سے پہلے جو پارمپورہ میں ہوا، تو اس طرح پاسٹ میں ہم نے دیکھا جو 2008، 2009، 2010 یا 2016 میں جو حالات رہے، تو اس کے بعد جو لال پیریڈ رہا، اس کے بعد جو ملیٹنٹس کی پریزنس ہے وہ دکھنا شروع ہو گیا، اور جو پیریڈ
जिस पीरियड में बंदिशें रहती है और वो पीरियड एक कंसोलिडेशन का पीरियड रहता है मिलिटेंट्स को सरगर्म होने के लिए, फिर एकजुट होने के लिए। और वहीं कुछ माह कबल हमने बात की थी यहाँ पे एडीजी सिक्योरिटी के साथ भी, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए जब मोबाइल सर्विसेज बंद रहती है तो काफ़ी चुनौती भरा उनके लिए ये रहता है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स है उनका पता लगा सके, क्योंकि जब वो फ़ोन के ज़रिए राब्ते में नहीं रहते हैं तो उनका जो उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस है उसमें काफ़ी मुश्किलात आती है। और वही जो जब अभी आज वाक़ा पेश आया तो इसी पस मंज़र में देखा जा सकता है। जी जिलानी, ये तसद्दुक़ जिस तरह से वादी में तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं और तलबा काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने जिस तरह से यकीन दिलाया कि तलबा का निसाब मुकम्मल करेंगे, और साथ ही उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर यह भी कहा कि बोर्ड का इम्तिहान की जो तारीख़ है उसको भी जो है आगे बढ़ा सकते हैं, इशारा दिया। तो क्या इससे तलबा को राहत मिलेगी? किस तरह के हालात हैं एजुकेशन को लेकर? जी, अगर हम बात करें जो अभी बात हुई शब्बीर मीर साहब ने जो बात की गवर्नर के मुशीर के साथ, और उन्होंने वजाहतन उनसे ये पूछा कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, हालांकि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, एक मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। और स्कूल वालों के साथ भी हमने बात की, कई स्कूल्स में जाके हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि जो राब्ता है उनका वही ड्राइवर के साथ जो उनको गाड़ियाँ लेने जाती है उनके साथ, या जो पेरेंट्स के साथ उनका राब्ता वही मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू ही रहता है या इंटरनेट के थ्रू रहता है। लेकिन इसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों से हमकिरार होना पड़ रहा है, और जो ही मतलब थोड़ा और हालात सही हो जाते हैं। हालांकि सरकार ये कहती आई है कि अभी वक्त आ चुका है कि बच्चे स्कूल जाए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अभी वो वक्त आ चुका है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए वो बिल्कुल कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में जो आज बात आई है कि जो स्कूलों में ये सिलेबस कवर कराने के लिए, हालांकि कई स्कूल अब अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दे रहे हैं और उनको बुला के घरों में ही वो प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं, ताकि जब भी स्कूल खुल जाए तो वो सीधा इम्तिहानात के मरहले में चले जाए, और जो बाकी बचा सिलेबस है उसमें वो उनको घर में ही वीडियो लेक्चर्स और जो असाइनमेंट्स पेन ड्राइव्स पे दे रहे हैं, ताकि वो घरों में जाके ही अपने घरों में ही वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट करे। और वहीं अगर हम हालातों की बात करें, फिर से जो कल से हालात जो बंदिशें हैं फिर कई जगहों पर रुनुमा हुई। अगर हम बात करें जो बडगाम के इलाके हैं या श्रीनगर के शिया डोमिनेटेड एरियाज़ है, या फिर मागाम की हम बात करें, तो वहाँ पे आज सुबह से ही जो खारदार तार बिछाई गई थी और लोगों को ये कहा गया था, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए ये कहा गया था कि वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, लेकिन दोपहर आते आते कई मुकामात पे जो आज़ादार हैं वो बाहर आए, और उन्होंने जो मरसिया कर और इन जहाँ पे ये जुलूस आज बरामद होने थे उन एरियाज़ पे पहुँचे। हालांकि वहाँ पे कांटेदार तार बिछी थी, वहाँ पुलिस तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो बंदिशें तोड़ के जो जुलूस है वो निकाला। हमारे साथ पट्टन और टंगमर्ग या मागाम के एरियाज़ कवर करके आज मुनीर हुरा भी आए हैं। मुनीर हुरा से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के उन्होंने आज जो हालात देखे अपने एरिया में। देखिए सनम, आज 7वीं मुहर्रम था और वहाँ पे इमाम हसन जो बेटे हैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी शहादत की मंसूब से आज का दिन मनाया जा रहा है। तो उस हवाले से जो मागाम एरिया है, मागाम में आज जुलूस बरामद होने वाला था, तो सुबह से ही वहाँ पे बंदिशें आयद की गई है और पुलिस ने लाउड स्पीकर के ज़रिए से ऐलान किया है कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है, कोई सड़क पे मेन बाज़ार में ना आए। और जहाँ से जुलूस बरामद होने वाला था तो वहाँ पे खारदार तार सुबह से ही बिछाई जा चुकी थी, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थी वो वहाँ पे तैनात की गई थी और उस एरियाज़ में। और जब दोपहर के बाद नमाज हुई और आज़ादार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस इमाम बारगाह में आ रहे थे, आस्तान मोहल्ला जगह है वहाँ पे, तो बाद में जब नमाज हुई, नमाज के बाद 1-2 घंटे मरसिया खानी भी हुई है और उसके बाद जुलूस निकाला गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर जहाँ पे तार लगाई जा चुकी थी मेन बाज़ार की तरफ, और वहाँ पर उन्होंने पेशकदमी की है आज़ादारों ने, और वहाँ पर पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की थी। और सुबह से वो कह रहे थे कि यहाँ पे 144 दफ़ा नाफिज है और यहाँ
उसके बाद जहाँ पे पेशकदमी उन अज़ादारों ने की है और वहाँ पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बाद में उन अज़ादारों ने तार हटाकर और वहाँ मेन बाज़ार में पेशकदमी की है। और कुल मिला के वहाँ पे जब और अज़ादार मिले और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वहाँ अज़ादार जमा हुए थे और बाद में वो इमाम बारगाह यागी पूरा जो है वहाँ पे पुरअमन तरीके से ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ है। और अगर सिक्योरिटी की फोर्सेस की बात करेंगे, वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को है वो उनकी निगरानी में ये जुलूस फिर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और कोई नाखुशगवार वाक़ा वहाँ पेश नहीं आया। जी सनम। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनम और मुनीर हुसैन हुर्रा, आप दोनों का कि आपने तफसीली जो है रोशनी डाली और मौजूदा हालात की तफसीलात आपने वादी और पूरे मुल्क के सामने रखे हैं इस बुलेटिन के जरिए। तो इस वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ नेटवर्क कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही वादी में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और आम लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। जरूरत की इस घड़ी में सीआरपीएफ आम लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सीआरपीएफ ने जरूरतमंद अफराद के लिए श्रीनगर में मुफ्त टेलीफोन सर्विस शुरू की है। दफा 370 की मनसूखी के बाद से ही वादी में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को कई मसाइल का सामना है। लोगों को रियासत के बाहर मुकीम अपने अजीज व अकारिब से राबिता करने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सीआरपीएफ ने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त टेलीफोन खिदमात की शुरुआत की है। इस सिलसिले में कई फोन बूथ कायम किए गए हैं, जिनके बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लोगों ने फोर्सेस के इस इक़दाम की सताइश की है। अच्छा हो रहा है, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ, महल्ले के सारे लोग यहाँ कर रहे हैं फोन शो। ऐसी कोई बात नहीं, चल रहा है, काम चल रहा है धीमा, लेकिन काम चल रहा है। अगरचे इंतजामिया ने लैंडलाइन सर्विस को पूरी तरह बहाल कर दिया है, लेकिन वादी में ऐसी लैंडलाइन सर्विस बहुत कम है। ताहम सीआरपीएफ के जरिए कायम किए गए फोन बूथ्स को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रोजाना यहाँ से 400 कॉल्स किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ का कहना है कि मोबाइल फोन सर्विस बहाल होने तक वो ये सिलसिला जारी रखेगी। जो बंदी की वजह से जो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बंद किए गए हैं सभी, तो हमारे कमांडेंट महोदय श्री पंकज सिंह के द्वारा यहाँ पे एसटीडी पीसीओ को ली गई है। ये यहाँ पर है एक रेडियो कॉलोनी के वहाँ पे, यहाँ पे हम टाइम से बैठते हैं, वहाँ पे भी बैठना पड़ता है और यहाँ पे भी। वहाँ पे 9 से 11 वहाँ पे बैठते हैं और 11 से 1 यहाँ पे और फिर 3 से 5 यहाँ पे और 5 से 7 वहाँ पे, जिससे कि सिविलियनों को अपने जो परिवार के उनके बंदे बाहर रह रहे हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उनको फ्री फ़ोन करा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी लोग 250-300 एक पोस्ट पर आ जाते हैं, मतलब 400-450 के करीब पर डे के करीब बंदे बात करते हैं। कशीदा और गैर यकीनी सूरत हाल में फोर्सेस की जानिब से लोगों की मदद यकीनन काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज डायरेक्टरेट एजुकेशन के दफ्तर में महकमे स्कूली तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन समेत महकमे के दीगर हुक्काम ने इस मीटिंग में शिरकत की। फारूक अहमद खान ने हुक्काम से कहा कि बिला जरूरत स्कूलों का दर्जा न बढ़ाया जाए। टीचरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। मुशीर ने डायरेक्टर महकमे तालीम पर जोर दिया कि वो प्राइमरी तालीम में सुधार करें और मयारी प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएं। फारूक अहमद खान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टीचरों की सताइश करने के साथ मयार पर खरा न उतरने वाले असातिज़ा को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में मुस्तकबिल करीब में सीबीएसई निसाब मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि महकमा इस ताल्लुक से गौर कर रहा है और इब्तदाई तौर पर चंद स्कूलों में सीबीएसई निसाब शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने गवर्नर के मुशीर से खास बातचीत की है। प्राइमरी एजुकेशन का कि हम पिछले 30 साल में वी लॉस्ट द प्लॉट, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ नई डेवलपमेंट्स होने वाली? हमारी डेवलपमेंट्स यही हैं कि हम जो फाउंडेशन है एक स्टूडेंट की, विच स्टार्ट from the nursery and pre-nursery and kindergarten, so to say, and then he goes to pre-primary and
middle and high. So we want to ensure that the child, irrespective of his background, where from he is coming, whether he is an urban area student or he comes from the most backward district of ours, he or she gets an equal opportunity to rub his or her shoulders with the students of the best private schools in the country. So that is the aim we are ऐसा मुमकिन है? डेफिनेटली मुमकिन है. अगर इंसान मार्स पे भिजवा सकता है अपना सैटेलाइट, तो हम यहाँ पे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. द ओनली थिंग इज वी हैव टू ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, और हम काम करेंगे और डेफिनेटली ऐसा होगा. किंडरगार्टन्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं और कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हैं. रोल वाइज हमने देखा है कि कुछ किंडरगार्टन्स में LKG क्लास में 30 से 40 बच्चे भी हैं. मगर जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, उस लेवल पे पहुँचने के लिए काफ़ी फंड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी. आपको जब भी जाना होता है कुतुब मीनार पे, तो आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना जी. तो हमने पहली सीढ़ी चढ़ ली. हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 किंडरगार्टन्स बना दिए जी. अब एक तो हमारी एंडेवर होगा कि हम उन किंडरगार्टन्स की स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करें, बिकॉज द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट is always there. Right. In the best of the best societies in the world, the scope of improvement would always be there. So we would be continuing our efforts of improving the standards of those existing kindergartens and also create more kindergartens. आपने टीचर्स को इंसेंटिवाइज करने की बात की, तो ये एक अच्छा कदम है. इसको हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे ये बात हमारे ज़रिए, ये इंसेंटिवाइजेशन का क्या तरीका रहेगा और किन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा. देखिए, अच्छे टीचर्स को, मेहनती टीचर्स को जो डिलीवर कर रहे हैं, उनके काम को इंसेंटिवाइज करना हमारी जिम्मेवारी बनती है. हमें उनके साथ मैकेनिकल वे में डील नहीं करना है कि अच्छा इसके 2 साल हो गए, इसको आप ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से. ये अच्छे जोन में था या थी, उसको दूसरे जोन में, डिफ़िकल्ट एरिया में. जिस वक्त हम अच्छे टीचर्स की बात करते हैं, तो अच्छे टीचर्स की जगह भी एक बनती है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे टीचर्स को इंसेंटिवाइज करें. हमारे पास बुरे टीचर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे टीचर्स ज़रूर हैं जहाँ पे उनके भी कंडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो हमारी दोनों जानब ये एफर्ट होगी कि हम इंसेंटिवाइज सारे के सारे टीचिंग कम्युनिटी को करें, चाहे वो किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किंडरगार्टन को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं. स्कूल एजुकेशन में हर एक टीचर जो है वो हमारा फ्यूचर की जनरेशन के बनाने का मेमार है. उसी ने उस जनरेशन को बनाना है. अभी तक जो इंसेंटिवाइजेशन का तरीका ये रहा है डिपार्टमेंट का, मैं हाल ही की बात नहीं करूँगा, मैं कई सालों से देखता हूँ एजुकेशन, तो वो ये रहा है कि जो अच्छा टीचर है उसकी ट्रांसफ़र 1 साल में हो जाती है, वहाँ से निकाला जाता है. अब आप जिस इंसेंटिवाइजेशन की बात कर रहे हैं वो ये है कि उसको कंफर्ट जोन में रखा जाएगा. अगर वो अच्छा पढ़ाता है, वो जहाँ रहना चाहे उसको रखा जाएगा. दूसरा ये कि उसके करियर प्रोग्रेशन की बात है कि करियर प्रोग्रेशन की यहाँ पे सालों में गिनते हैं, किसने कितने साल लगाए महकमे में, उसके उतने साल, किसने कितना पढ़ाया वो ज़रूरी नहीं है. हम उसी मैकेनिकल फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकल के एक उस फ्रेम ऑफ माइंड में आना चाहते हैं जहाँ पे हम सारे हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, चाहे वो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, या जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, या वो टीचर हैं, या वो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और हमारे डायरेक्शन ऑफिस से जो ऑफिसर्स हैं, वो सबका रोल बनता है. और इसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो इंसेंटिवाइजेशन है वो ऐसी नहीं होगी कि उसको साल के बाद उठा दिया जाए. उसको यही इंसेंटिव होगा कि वो जहाँ पे काम करे कोई भी अच्छा टीचर, जैसे आपने खुद बताया कि उसको एक कंफर्ट जोन में रखना ज़रूरी है, तभी हम उससे बेस्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हमारी कोशिश होगी, ख़ासतौर पर जो हमारा डायरेक्टरेट है, कि ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई करके जो टीचर्स कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिलीवरी साफ सामने नज़र आ जाती है, तो उस डिलीवरी को देखकर उनके ट्रांसफर्स और उनकी फर्दर जो कैरियर प्लानिंग है वो की जाए. CBSE, are we going CBSE now? It is an idea with us that why shouldn't our school be also having CBSE classes. So अभी ये एक thinking stage में हम लोग, we are just exchanging ideas, और ये भी हो सकता है कि हम कल इसमें कुछ तब्दीली लाएं अपने सिस्टम में. तब्दीली लाएं मतलब?
تبدیلی لائیں مطلب کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ CBSE کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو ہم CBSE کی بھی کچھ کلاسز اپنے اسکولس میں انٹروڈیوس کروائیں اور ایز فرسٹ اسٹیپ آبویسلی. سر اس کی آپ نے بات کی فیس اسٹرکچر، یہ پرائیویٹ اسکولوں کا فیس اسٹرکچر بہت سردرد بنا ہوا لوگوں کے لیے بھی اور مجھے لگتا ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی. اس کا کوئی طریقہ کیوں نہیں نکلتا؟ دیکھیے اس کا طریقہ نکلا ہوا ہے آلریڈی. ایک یہ جو فی فکسیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی اور انہوں نے جو اپنے وہ دی ہوئی ہیں ریکمنڈیشنز ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈائریکٹریٹ کا نہیں عمل بھی ہوگا کم سے کم. اگر ابھی تک نہیں کسی جگہ پہ ہوا تو ڈیفینیٹلی آگے میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس پہ عمل ہوگا اور جو بھی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہوں گی دوز وڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر ان اسپرٹ. بڈگام میں سخت بندشوں کے باوجود آج ماتمی جلوس نکالا گیا. لوگوں نے تحدیدات کی پرواہ کیے بغیر پٹوا بڈگام سے جلوس نکالا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. امن و ضبط کی برقراری کے لیے اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا اور مختلف مقامات پر خاردار تاریں لگائی گئی تھیں. امام باڑہ بڈگام پر جلوس اختتام پذیر ہوا. بڈگام کے ماگام میں آج علم شریف برآمد ہوا، تاہم انتظامیہ نے صبح سے ہی یہاں پابندی عائد کی تھی. جلوس برآمد ہونے والی سڑک پر خاردار تاریں بچھائی گئی تھیں اور سڑکوں پر بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز تعینات تھیں. ماگام بازار میں صبح سے ہی پولیس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ماگام میں دفعہ 144 نافذ ہونے اور سڑکوں پر جلوس برآمد نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا. بعد میں دوپہر کے بعد آستانہ محلہ ماگام سے جلوس برآمد ہوا. عزاداروں نے جب بازار کی طرف پیش قدمی کی تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، تاہم اس کے باوجود عزاداروں نے خاردار تاروں کو ہٹا کر مین بازار میں جلوس کو پہنچایا. مین بازار میں کافی تعداد میں اس جلوس میں عزاداروں نے شرکت کی. عزاداروں کا یہ جلوس ماگام کے مین بازار سے ہوتے ہوئے پھر امام بارگاہ یاگی پورہ میں پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. پونچھ میں گزشتہ رات شہزادہ قاسم کی شہادت کی یاد میں ماتمی جلوس نکالا گیا. تکیہ پہلوان شاہ سے جلوس برآمد ہوا اور امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا. اس جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ضلع کلگام میں انتظامیہ اور مقامی میونسپل کمیٹی کی جانب سے گزشتہ دنوں سے جاری انہدامی کارروائی کے دوران کئی ناجائز تعمیرات منہدم کی گئیں، جبکہ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حالات کا جائزہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور غیر قانونی طریقے سے تعمیرات کھڑی نہ کریں. میونسپل کمیٹی نے لوگوں کو بتایا کہ وہ باضابطہ طور پر اجازت حاصل کر کے تعمیرات شروع کریں. ذرائع کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران ضلع میں کئی غیر قانونی عمارتیں کھڑی کی گئیں اور انتظامیہ اس کا تدارک کرنے میں لگی ہے. مہم ہم نے چالو رکھی ہے اور یہ چالو رکھیں گے. ہماری لوگوں سے التماس ہے کہ ایسے اس ٹائم میں اس سٹرائک پیریڈ میں یہ ناجائز تجاوزات مت کرے، کیونکہ ہم یہ مطلب سب پھر دمائز کریں گے، منتخب کریں گے اور یہ کارروائی جاری رہے گی. ہم آپ کی وساطت سے تمام ذی شعور لوگوں کو، کولگام کے لوگوں کو التماس کرتے ہیں کہ آج یہ ایسی کارروائیاں مت کیجیے، ناجائز تجاوزات مت کریے، کیونکہ ہماری مہم چالو رہے گی اور ہم یہ رہنے نہیں دیں گے. جس کو پرمیشن ہوگا اس کو ہم کچھ، اس کو کیا کریں گے، اس کو کچھ نہیں کریں گے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ پرمیشن لے اور کرے کیا کرنا ہے، مگر پرمیشن کے بغیر ہم سب ڈیمالش کریں گے. شوپیاں کی فروٹ منڈی میں بھی گزشتہ ایک ماہ سے کاروباری سرگرمیاں مسلسل معطل ہیں. اگرچہ حکومت نے سیب کی خریداری کے لیے شوپیاں میں بھی مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کے تحت سینٹر قائم کرنے کے احکامات صادر کیے، تاہم ابھی تک اس سلسلے میں زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. جبکہ رواں سال میوہ کاشتکاروں میں میوے کو لے کر کافی تشویش پائی جا رہی ہے. شوپیاں کی فروٹ منڈی میں اس موسم میں سیب اور دیگر میوجات کا کاروبار عروج پر ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار بندش کی وجہ سے حالات بالکل اس کے برعکس ہیں، جس سے رواں سال میوہ صنعت کو نقصان ہونے کا خدشہ لاحق ہے. ایل او سی پر پاکستان کی اشتعال انگیزی جاری ہے. پاکستانی فوج نے پنچ میں آج صبح فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. کرشنا گھاٹی سیکٹر کے مختلف علاقوں ساتوری، اپر سلوتری، گھنی اور
फ्लोर वगैरह में पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कई लोग अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए, जबकि चंद अफराद ने महफूज मकामात पर पनाह हासिल की। फौज की जानब से भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया गया। इत्तलात के मुताबिक शाम तक दोनों जानब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। चंद दिन की खामोशी के बाद आज फिर सुबह पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी की गई, जिसमें सलोत्री, झलास और अपर सलोत्री जैसे गांवों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी अभी भी रुक रुक कर जारी है और इस गोलाबारी से लोग कितने परेशान हैं हम इस बात को आपको बता दें कि अभी देखिए अभी हमारे सामने एक और गोला जो है वो गिरा है कि लोगों का कहना है कि अभी भी फायरिंग जारी है और फायरिंग का बहुत ज्यादा खतरा है। लोगों के बाल बच्चों को खतरा है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें खतरा होता है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, गांव सलोत्री, LOC पुंछ। उधर अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई। लोगों के मुताबिक जब भी सरहद के उस पार से गोलाबारी की जाती है उन्हें परेशानियों का सामना रहता है और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने मरकजी हुकूमत से इस मामले का कोई मुस्तकिल हल निकालने की अपील की है। बड़ा डर लगता है, अस लोग भैंकरे बड़ी ने अपने अपने और बच्चे भी स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। हम बॉर्डर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों के लिए ये रोज की जंग है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक ही बार आर पार की जंग करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दें, ताकि जो बॉर्डर क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या का हल भी हो सके। और इस पूरे मामले पर बात करते हमारे नुमाइंदा समीर भट्ट हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से आज कृष्णा घाटी में भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तान मुसलसल नापाक हरकतें कर रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं रहा, उसको तमाम ममालिक ने कश्मीर के मामले पर अलग थलग कर दिया है, तो क्या ये एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान अमन की कोशिशों को मुतासर करना चाहता है कश्मीर में? देखिए जिलानी, आपने बिल्कुल सही कहा और यही इंटेंशन है पाकिस्तान की, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर अगर हम देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आज सुबह की अगर हम बात करें 7:30 से KG सेक्टर जो पुंछ में पड़ता है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त शेलिंग शुरू की गई और जो दिन भर चलती रही और हिंदुस्तानी फौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद शाम डलते डलते फिर एक बार शाहपुर सेक्टर जो कि पुंछ में पड़ता है वहां पे पाकिस्तान ने शेलिंग शुरू की और न सिर्फ जो हमारे सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, सिक्योरिटी पोस्ट्स हैं आर्मी के, बल्कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे फायरिंग की, उनको टारगेट किया। लेकिन हिंदुस्तानी फौज दोनों जगहों पे मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। उसी बीच अखनूर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है, उसका भी जवाब दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गया है। और आपने सही कहा, जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो अलग थलग हो गया है, उसको बड़ी उम्मीदें हैं कि जो सुपर पावर्स है जैसे अमेरिका हो या इवन की जो OIC ममालिक हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। कश्मीर कांड पर जो 370 पर उसने एक स्टैंड लिया था, सख्त स्टैंड लिया था, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी है और बिल्कुल अलग थलग रह के अलग अलग वो हो गया है। और इसको देखते हुए ही, क्योंकि इमरान खान इस वक्त बहुत ही प्रेशर में है, उसको डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है और इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के चीफ लगातार हिंदुस्तान को न्यूक्लियर वार की और प्राइम मिनिस्टर भी न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब सारा दबाव जो है पाकिस्तानी आर्मी पर है, ISIS पर है, खुफिया एजेंसी उसकी और जो मिलिटेंट्स का जिसका जमावड़ा उसने किया हुआ है लॉन्चिंग पैड्स पर, तो उनकी भी घुसपैठ करवानी है। एक तरफ से जो हिंदुस्तान को जो एक खौफ दिखाना है, एक रोब दिखाना है, और दूसरी तरफ से जो मिलिटेंट्स है उनको भी घुसपैठ करवानी है। तो उसी को देखते हुए ये जो फायरिंग जो है उसने बहुत ज्यादा शुरू की हुई है। हमने देखा पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो राजौरी का नौशहरा सेक्टर है, KG सेक्टर है, इसी तरह पुंछ का जो KG सेक्टर है, शाहपुर सेक्टर है, इस तरह अखनूर हो और कश्मीर वैली में भी हमने उड़ी सेक्टर देखा, कुपवारा के सेक्टर देखे, तो लगातार पाकिस्तान इन लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले जिस तरह से पुंछ में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके कई
फौजियों को हलाक कर दिया था। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तानी फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, और आर्मी चीफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर और या डिफेंस मिनिस्टर, लगातार हम जो हमारी लीडरशिप है वो बार बार यही कह रही है कि हम पहले यहाँ से गोली नहीं चलाने चाहते, लेकिन अगर बॉर्डर पे कोई भी हरकत पाकिस्तान करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर आपने सही कहा, पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग है। इमरान खान बहुत ही प्रेशर फील कर रहे हैं, दबाव में है, और जिस तरह से 370 पर हिंदुस्तान को रशिया से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर मुस्लिम ममालिक का सपोर्ट मिला है, उसको देखते हुए पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं रहा, और वो सारा कंसंट्रेशन जो है, सारा जो उसका माइंड सेट है वो बॉर्डर पर चला गया, और अब वो इस तरह की बुजदिलाना हरकत पर लौट आया है। जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार जो इश्तियाल अंगेजी बढ़ रही है सरहदों पर, एक वजह यह भी हो सकती है कि क्या 34 दिन गुजर गए, कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान के मकसद के मुताबिक, अगर सोचा जाए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कश्मीर में, और आज जिस तरह से अजीत डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद कर दे, हम पाबंदियां भी हटा लेंगे, तो एक तरह से ये भी एक है बौखलाहट पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि अब वो अपनी चालबाजी के जरिए जो कश्मीर में बहुत ज्यादा यहाँ पे वायलेंस को प्रवोक करेगा, यहाँ पे खून खराबा करवाएगा, लेकिन उसकी सारी चालें नाकाम हो गई हैं। और हमने देखा पिछले 1 महीने की अगर हम 33 दिनों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ी घटना वहाँ पे नहीं हुई है। हालांकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे जो कह सकते पूरी जिंदगी नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये सही जो लोग जो है अपनी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और लगातार हालात जो है धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो चालें थी, उसके मंसूबे थे, और उसका जो एक इंटेंशन था, निफेरियस इंटेंशन था कि यहाँ पे खून खराबा करवाए, मासूम लोगों की जिसमें जान जाए, और जहाँ पे डैमेज हो, प्रॉपर्टीज डैमेज हो, और बाकी चीजें हो, लेकिन उसमें वो कामयाब होता दिख नहीं रहा है। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर तौर पर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को है, पाकिस्तान की फौज को है। और लगातार हमने यही देखा कि जिस तरह से आज हमने देखा कि सोपोर में किस तरह से एक मासूम बच्चे को उन्होंने टारगेट किया है, ये भी एक दिखाता है कि पाकिस्तान जो है अब कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ खौफ हरास का माहौल पैदा करे, और न सिर्फ इंटरनल एरियाज में बल्कि बॉर्डर एरियाज पर भी उसने जो ये अपनी हरकतें तेज कर दी है। लेकिन जाहिर तौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे आर्मी है और BSF है, वो किसी भी मुकाबले के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी तफसीलात के लिए। बहरहाल पाकिस्तान को भी ये जान लेना चाहिए कि सरहदें हिंदुस्तान की मजबूत हैं, लाख वो कोशिशें कर ले। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। लदरबन कोवारी कुपवाड़ा में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब रुबीना बेगम नामी एक लड़की की मौत की खबर इलाके में पहुंची। लवाकीन के मुताबिक रुबीना को ससुराल वालों ने पीट पीट कर हलाक कर दिया। रुबीना की शादी कई साल कबल कुडगुम कुपवाड़ा में हुई थी और वो 2 बच्चों की मां थी। रुबीना की लाश जो ही इलाके में पहुंची तो पूरे इलाके में सफ़े मातम भिज गई। लवाकीन और रिश्तेदार ज़ोर कतार रो रहे हैं। लवाकीन पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें मुलविस उसके शौहर और घर वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके लाश को लवाकीन के हवाले किया और मामले की तहकीकात शुरू की। वाज़ेह के 2 रोज कबल कलारूस कुपवाड़ा में भी 3 रोज से लापता एक आम शहरी की लाश मकई के खेतों में बरामद हुई थी, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। गोटिंग में हुई है। जब हमने सुना है ये मेरा भाई है, इसने सुना है कि इसकी डेड बॉडी इन्होंने लाकर इस हॉस्पिटल में रखा था। बाद में उनका कोई भी आदमी नहीं इधर हमें नज़र नहीं आया है। क्यों नज़र नहीं आया है? उन्होंने शायद इसको फांसी दे दिया है। अब कानून को हम रुजू करते हैं ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो बाकी हमारे माएँ बहनें हैं उनको भी थोड़ा सा मदद मिलेगा इससे। ये सनिस गरस में लड़की त्रा वापस कहें, ये कुन वहर 6 रेत पे सठा पीर पर कर इस्तकबाल कर कोर तस जम तुरिस पे वापस गसान। लेकिन जिस अमिस 2 बच बिल्कुल लकट लकट बच, कूर तो लड़का, मगर सताव अमिस हटिस निशान, अम सो निशान वन कि अमिस दिस फस। अम सो क्या वन द्री आमुत, सह आव सोन गर दोपन
सो एडमिट कपवाड़ तो तुम वसिव सो तोतन हजरत यतस तुम दोप हसा पोस्ट मास्टम चलान तो ये तमो मज वुचान कहान अपील कर कि इंसाफ गोस गवर्नमेंट के तरफ मिलन अगर सान कोड़ आज गो इत पे आई फौज दिन पगह यी बेक सज कोड़ फौज दिन रोज यी बेक सज कोड़ फौज दिन नती नेर सोरे कश्मीर गल तल डूबित गिरफ्तार गन सारे बोध गन यह क्या गो अगर आज सान कोड़ गो पगह गस बेक सज कोड़। मुल्क के दीगर मकामात की तरह पुंछ में भी तलबा ने बीती शब चंद्रयान 2 मिशन का मुशाहदा किया। इस मकसद के लिए गुजर बकरवाल हॉस्टल में बड़ी LED नस्ब की गई थी। ताहम चंद्रयान 2 का राब्ता मुनक़ता होने पर इन तलबा ने अफसोस का इजहार किया। वैद मंदिर बाल निकेतन जम्मू में गणेश महोत्सव का इनकाद किया गया। यतीम बच्चों ने इस उत्सव में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। समाजी कारकुन प्रीति महाजन ने बच्चों को मजहबी रिवायतों से वाकिफ कराने के मकसद से इस उत्सव का इनकाद किया। यही था कि इनके साथ जो भी फेस्टिवल हो हमारे वो सब लोग यहाँ पे आके इनके साथ सेलिब्रेट करें तो इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज अगर ये बच्चियाँ मेरे साथ बैठी हैं तो मुझे खुद बहुत प्राउड फील हो रहा है और इनको भी कहीं ना कहीं लगता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों पर बर्फबारी के दिनों में मुल्क से कट कर रह जाते हैं। इस दौरान हुकूमत की जानिब से लद्दाख को अशाए ज़रूरिया की फराहमी का अमल जारी है। लोगों की मांग है कि मुतल्लिक़ा इलाकों तक साल भर रसाई के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। पेश है सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। कश्मीर और पुंछ को जोड़ने वाला मुगल रोड हो, गुरेज, टंगदार या फिर लद्दाख, मौसम सरमा में सड़क राबिते बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर होती है। बर्फबारी की वजह से 3-4 महीनों तक रास्ते बंद रहते हैं। सियाचिन में तैनात फौज के लिए भी इन्हीं रास्तों से सामान पहुंचाया जाता है। इन इलाकों के लोग हुकूमत से इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालने का तवील मुद्दत से मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने अब लद्दाख के लिए जरूरी अशिया की सप्लाई का अमल शुरू कर दिया है जहां पर सामान की जखीरा अंदोजी की जाती है। वादी के मौजूदा हालात की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का अमल भी मुतासिर हुआ है। कई ट्रक ड्राइवर इस रूट पर सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक इन्हें पत्थरबाजी का सामना भी करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो रात के वक्त सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। लेके 4 गाड़ी जाएंगे ले बहुत ही हालात खराब है हमारे, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही दिक्कत है। रात को निकले थे कोई 12 बजे, 4 बजे पहुंचे सोनामार्ग। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर वाला एरिया आप रात को कवर करते हैं? हाँ, रात को ही करते हैं। दिन को तो पत्थर चलता है, पत्थरबाजी होती है। तो हम ले जा रहे हैं दूध लेके, पीछे जाकर मेरी गाड़ी को पंपुरा में पत्थर बज गए। 2 गाड़ी थी, दोनों को पत्थर बज गए। दिन को कोई 3 बजे। अब हम रात को चलते हैं 12-1 बजे 2 बजे, तो सोनामार्ग पहुँचते हैं अब सुबह 5 बजे। तो फिर उसके बाद चलते हैं रास्ते रास्ते। दिक्कत तो बहुत है, परेशानी बहुत आ रही है। वहीं हुकूमत का कहना है कि लद्दाख को जरूरी अशिया की सप्लाई वक्त से पहले ही की जा रही है। हमेशा की तरह लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख और करगिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सप्लाईज हर साल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको इंश्योर करती है कि वहाँ पे शेख खुर्दनी जो भी कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मुहैया की जाए। इस वक्त भी उसकी सप्लाईज का काम चल रहा है और वहाँ पे सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं सर्दियों के लिए। लद्दाख के लोगों का देरीना मुतालबा है कि जोजिला टनल बनाया जाए। हालांकि मोदी हुकूमत ने तकरीबन 1.5 साल पहले इस काम को शुरू किया था, लेकिन इसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि लद्दाख के लोगों को साल भर जोड़े रखने वाला रास्ता और जोजिला पे बनने वाली टनल कब मुकम्मल हो पाती है, ताकि लद्दाख के लोगों का देश के साथ पूरे साल राब्ता बना रहे। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक़, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने सुम्बुल सोनावारी में शिया आबादी वाले इलाकों का तफसीली दौरा किया। इनके हमरा SDM सुम्बुल और नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिकार गाजी भी थे। दौरे के दौरान डीसी बांडीपुरा ने मुतादिद इमामबाड़ों में मुहर्रम के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतादिद शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने मुहर्रम के हवाले से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया।
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी ऑफिस बांडीपुरा में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि बांडीपुरा जिले में कुल 12 ब्लॉक हैं और जिले में 472 पंचों के अलावा 112 सरपंच वोट डालने के मजाज होंगे। तामीर और तरक्की को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने देही तरक्की महकमे के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम रुके बड़े कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करें।